علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بنائی جانے والی پیرا فورس کسی کام نہ آ سکی۔ نشتر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن کی حدود میں جگہ جگہ غیر قانونی بازار لگائے جا رہے ہیں جو غیر قانونی تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جانب ہفتہ وار بازاروں میں ناقص اشیاء خورونوش اور دوسری ضروریات زندگی کی ناقص اشیاء فروخت کی جاتی ہیں جن سے شہریوں کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور حسن افتخار ڈوگر، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے لاہور میں بڑھتے ہوئے تجاوزات کے پیش نظر بنائی جانے والی نیو پیرا فورس کسی کام نہ آ سکی۔ ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس نے سی ایم پنجاب کے احکامات جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک طرف پیرا فورس ریڑھی بانوں کے خلاف اور جو دوسرے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے، دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے ماڈل ٹاؤن اور مسٹر ٹاؤن کی حدود میں غیر قانونی بازاروں کی بھرمار ہے۔ یہ غیر قانونی ہفتہ وار بازار جو ہے ناجائز تجاوزات کی وجہ بنتے ہیں جس سے شہریوں کو گزرگاہوں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہری جو ہے منٹوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں پر کرنے میں مجبور ہیں۔ دوسری جانب آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ان غیر قانونی بازاروں میں ناقص اشیاء خورونوش فروخت کی جاتی ہیں اور ضروریاتی زندگی کی بھی جو اشیاء ہیں وہ بھی ناقص فروخت کی جاتی ہیں جو کہ شہریوں کی جانی مالی نقصان کا جو ہے سبب بن سکتی ہیں۔ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ غیر قانونی بازاروں میں سیکیورٹی کے بھی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں ہوتے جس سے شہریوں کو کسی بھی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جبکہ دوسری جانب سے ڈی سی لاہور کی جانب سے واضح احکامات ہیں کہ غیر قانونی بازاروں کے خلاف جو ہے وہ فی الفور کارروائی کی جائے، مگر جو دیگر جو محکمے ہیں ضلع انتظامیہ اور پیرا فورس اور لاہور پولیس اور غیر قانونی بازار مافیا کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ گٹھ جوڑ جو ہے ان کی محکموں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ ان غیر قانونی بازاروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر کے انہیں بند کیا جائے تاکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اور گزرگاہوں سے جو شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے حسن افتخار ڈوگر۔ تھانہ صدر سیالکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ 2 خطرناک گینگز کے سرغنہ سمیت 6 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے، لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کا کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کے افسران اور نوجوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد دینے کا اعلان۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے محمد اشرف۔ جی بالکل، ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے پولیس کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ صدر سیالکوٹ انسپکٹر نعمان احمد بوٹر نے جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر حکمت عملی کے ذریعے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شیرو اور بدرو گینگز کے سرغنہ سمیت 6 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان شہریوں سے موٹر سائیکلیں، نقدی اور قیمتی موبائل فونز چھیننے اور چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے 20 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضہ سے 5 موٹر سائیکلیں، نقدی 4,75,000 روپے، 4 قیمتی اسمارٹ فون، 4 پسٹل 30 بور، 2 رائفلیں اور سینکڑوں گولیاں برآمد کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا ہے۔ جی پنجاب بھر کی طرح بورے والا اور اس کے گرد و نواح علاقے مضافاتی علاقوں میں شدید دھند کا اراج ہے۔ حد نگاہ چند میٹر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز محمد شہباز قریشی سے۔ بورے والا اور گرد و نواح میں شدید دھند نے اپنا راج جما لیا۔ کچی پکی، شیخ فاضل، گگو منڈی، ساہوکا سمیت مضافاتی علاقوں میں دھند کے باعث حد نگاہ چند میٹر تک محدود ہو چکی۔ دھند کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے جبکہ سردی کی شدت میں بھی واضح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عوام الناس سے اپیل کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کے باعث شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، گاڑی چلاتے ہوئے فاگ لائٹس کا استعمال اور رفتار کم رکھیں اور گاڑیوں میں مناسب فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے شہریوں کو ہدایات کی ہیں کہ گھروں سے نکلتے ہوئے گرم ملبوسات کا استعمال کریں تاکہ سردی کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد شہباز قریشی، NTN نیوز، بورے والا۔ اب آپ کو بتائیں گے منڈی صادق گنج سے بورے والا جانے والا مسافر حادثے کا شکار ہو گیا جہاں کوسٹر ٹریکٹر ٹرالے سے جا کر ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ شدید دھند اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد RSHC منڈی صادق گنج منتقل کر دیا۔
पुलिस की जानिब से हादसे की मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक महफूज पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। पुलिस ने कई मुकदमात में मतलूब चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं बिलाल वड़ाइच। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक महफूज पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। पुलिस ने चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना लालियां सब इंस्पेक्टर आतिफ नज़ीर, सब इंस्पेक्टर वली हसन ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। चोर गैंग मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को चोरी के 6 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नजायज असला भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी और अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। मैक्लोडगंज और इसके गिरदो नवाह में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफर हो गई है और मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने अगले कई दिनों तक धुंध की शिद्दत बरकरार रखने की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद विटू। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मैक्लोडगंज और उसके मज़ाफ़ात में भी शदीद धुंध ने डेरे जमा रखे हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफर हो गई और मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले कई दिनों तक धुंध की शिद्दत बरकरार रखने की पेशेनगोई की है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मुख्तलिफ शहरों पर गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता रेंगती नजर आई, जबकि कई मकामात पर ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। शदीद धुंध की वजह से स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तलबात भी मुतासर हुए। कम हद निगाह के बायस बच्चों को तलीमी अदारों तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आई। कई तलबा ताख़ीर से पहुँचे, जबकि बाज़ वालिदैन ने एहतियातन बच्चों को घरों में ही रोक लिया। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों और ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेजों की ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवर्स को हदायत की है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, रफ्तार कम रखें और गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखें। मौसमी माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में धुंध की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है, जिससे सर्दी में मजीद इजाफा हो सकता है। शहरियों और वालिदैन ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अहमद वट्टू, NTN न्यूज़, मैक्लोडगंज। शोरकोट में वज़ीर आला इनिशिएटिव अर्बन फॉरेस्ट के तहत झंग रोड बाहू पार्क के करीब पौधे लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ, SDO जंगलात ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर उल हसन सयाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट वज़ीर-ए-आला इनिशिएटिव अर्बन फॉरेस्ट के तहत जंग रोड बाऊ पार्क के करीब पौधे लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सदफ, SDO जंगलात, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल इकरामुल हक, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर का कहना था कि बाऊ पार्क के साथ अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के तहत शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसमें जामन और दीगर अक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं और शजरकारी न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा करेगी, बल्कि शोरकोट के शहरियों को साफ, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। शजरकारी मुहिम के हवाले से जो खज़ां की शजरकारी मुहिम है, उसके हवाले से हमने जंग रोड के ऊपर एक अर्बन फॉरेस्ट जो है उसकी इफ्तिताही पौधे जो है वो हमने लगाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूलों के बच्चे भी पौधे लगा रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 एकड़ का एरिया है, जिसमें हमने 150 से 200 पौधा या इससे भी ज़्यादा कुछ पौधे जो है वो हम लगा रहे हैं इंशाल्लाह। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने मजीद कहा कि अर्बन फॉरेस्ट का क़याम वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक माहौल दोस्त इक़दामात की मजबूत बुनियाद साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल दोस्त सरगर्मियाँ और शजरकारी के फ़रोग के लिए अवामी आगाही मुहिम को मजीद बढ़ाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा मंजूर हसन सयाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही विहाड़ी शहर के लंडा बाजार में खरीदारों का रश बढ़ गया है। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी करते दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदे मलिक हुमायूं इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद जानते हैं शहरियों के क्या तासुरात हैं। जी हुमायूं, बता। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजार में रश पड़ गया और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे आए हैं। जी, हम बाज़ार में आए थे जैकेट लेने। जैकेटों के रेट, जर्सियों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो हमारी पहुंच से दूर हैं, इसलिए हमने लंडा बाज़ार की तरफ रुख किया है। इधर भी जो पिछले साल या उससे पिछले साल रेट था उससे बहुत ज़्यादा रेट हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि टैक्स या वो जिधर से वो आते हैं गाड़ियां वगैरह उधर से टैक्स बढ़ गए हैं, इसलिए हम भी महंगा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी
गरीब आदमी लंडे से तो ले सकता है लेकिन नींव नहीं ले सकता आजकल की महंगाई के दौर में। जी, शहरी का कहना है कि लंडा बाज़ार में भी बहुत महंगाई हो चुकी है। जो हम पिछली मर्तबा खरीदते थे उससे काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुका है, और हुकूमत से गुज़ारिश है कि कम से कम लंडा में तो रेट की कमी पेशी की जाए। खानेवाल मोटरवे M4 इंटरचेंज पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह ना होने के बराबर रह गई है। मोटरवे इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के तहत मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को हिदायत की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। जी शेख सुहेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इसके तो मैं मौजूद हूँ मोटर वे M4 पर। जैसे ही मौसम ने करवट बदली तो सर्दी में साउथ पंजाब में इजाफा हो गया, और जो हद निगाह है वो धुंध की वजह से सिफर रह गया, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, और साउथ पंजाब के तकरीबन तमाम मोटरवेज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। और जो लोग पैसेंजर हैं जो अपने प्यारों से मिलने दूसरे शहर उन जा रहे थे, उनको इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी भाई बताइए कि आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? अच्छा, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ तो हमारी इधर कोई पॉलिसीज़ या नोटिसेस होने चाहिए कि मोटरवे किस टाइम से किस टाइम तक ऑपरेट कर रहा होगा, ताकि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई 8-10 से ज़्यादा बसेस की लाइन लगी हुई है। सो इसका मैं तो यही अज्यूम करूँगा कि ना इन कंपनीज़ को ये आइडिया था, ना ड्राइवर्स को ये आइडिया था कि मोटरवे बंद होगा, तो इस वजह से यहाँ पे इनको वेट करना पड़ रहा है। तो अगर एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस हो कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक मोटरवे ऑपरेट करेगा, तब भी इस चीज़ से बचा जा सकता है। हमें भी आइडिया हो, हम भी उस हिसाब से प्लान करें कि हमने किस टाइम निकलना है, किस टाइम ट्रैवल करना है। अदर दैन दैट, अगर ये बसेस आ गई हैं यहाँ पे और कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, तो आई थिंक कि अगर आप कुछ टाइम के वक्फे के साथ, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद एक बस को अगर आप रवाना करें मोटरवे पे और उसके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा इशू फेस होगा। तो रात का टाइम हो वो अलग बात है, बट ये दिन का टाइम है, इधर विजिबिलिटी लेवल उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। सो आई थिंक कि इस तरह के कुछ स्टेप्स लेके जो है ना इस चीज़ से बचा जा सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों को इन्फॉर्म रखें अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज होती है तो। जी बिल्कुल, जैसे कि फैमिली का यही कहना है कि जो यहाँ पर पैसेंजर है उनका यही कहना है कि अगर हमें ये कंपनी को आगाही दी जाती मोटरवे की जानिब से कि जो है मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं, तो कंपनी मालकान को पता होता तो वो भी गाड़ियाँ लेकर शहरों से ना निकलते। अब इनका पैसेंजर का ये कहना है कि गाड़ियाँ निकल हम यहाँ पर पहुँच तो गए हैं, लेकिन किसी किस्म का भी कोई जो है ना वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, और हम यहाँ पर तकरीबन घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं, कोई रास्ता। और इनका ये साथ साथ ये भी कहना था कि अगर जो 1 बाय 1 गाड़ी भी अगर जो निकाली जाए तो स्लोली फोग लाइट इस्तेमाल करके हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। जी। दुनियापुर में नेशनल हाईवे, सुपर रोड, मेन शहर काजमी चौक, रेलवे रोड और करोड़ पहका पर शदीद धुंध छाने के बायस हद निगाह सिफर होकर रह गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी दानिश की इस रिपोर्ट में। दुनियापुर में नेशनल हाईवे, सुपर रोड और मेन शहर काजमी चौक, करोड़ पक्का रोड, रेलवे रोड पर हद निगाह तकरीबन सिफर होकर रह गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर हो रही है। सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत में इस कदर ज्यादा इजाफा है कि सामने से आने वाली गाड़ियां और सड़क के निशानात दिखाई नहीं दे रहे, जिसके बायस हादसा का खदशा बढ़ने लगा है। ड्राइवर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मुसाफिर गाड़ियां आहिस्ता रफ्तार से चलने पर मजबूर हैं। ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। धुंध की सूरत हाल बरकरार रहने की सूरत में मजीद हिफाजती इक़दाम किए जाएं। शहरियों से अपील की है कि गाड़ियों की लाइट्स ऑन रखें, मुनासिब फासला बरकरार रखें और तेज रफ्तारी से मुकम्मल इज्तनाब करें, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा चौधरी दानिश जावेद, दुनियापुर। शोरकोट में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। THU हॉस्पिटल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए डेस्क कायम कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजूरुल हसन सियाल से। जी, मुल्क भर की तरह शोरकोट में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। यहाँ पे एक डेस्क भी काम कर दिया। उसके अलावा शोरकोट शहर में मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी गई हैं। मेरे साथ MS डॉक्टर हमारी साहब, आइए इनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक पोलियो की मुहिम का स्टार्ट हो चुका है। आवाम से यही गुजारिश है कि अपने 5 साल के बच्चों को हॉस्पिटल लेके आएं ताकि पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार पिलाने हैं और इसके लिए हमारी फिक्स टीमें भी मौजूद है, मोबाइल टीम भी मौजूद है। चिल्ड्रन वार्ड में अलग से है, इमरजेंसी में अलग से, ओपीडी से अलग से बैठे हुए। मेन डोर इंट्रेंस 1 एग्जिट फार्मूला हमारा है। कोई बच्चा इंशाल्लाह मिस होने नहीं देंगे। इसमें आवाम हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह कोई बच्चा मिस नहीं होगा। और ये है कि बच्चों को हमारी टीम हर वक्त मौजूद है, सुबह दोपहर शाम रात किसी टाइम भी आप बच्चा लेके आते हैं, हम पोलियो के कतरे उसे पिलाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर माली मशवरा करें कि हम 24 घंटे बच्चों के लिए हाजिर हैं, बच्चों को पोलियो कतरे दाल भी पिलाएं ताकि मुस्तकबिल में अपाहिज होने से बचाएं। जी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन शोरकोट कैंट में पहली कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद किया गया। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली तालिबात में डिग्रियां भी तकसीम की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मंसूर उल हसन सयाल। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन शोरकोट कैंट में पहली कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में डॉक्टर बुशरा परवीन, डिवीजनल डायरेक्टर कॉलेज, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लशारी, कंट्रोलर इम्तिहानात बोर्ड डॉक्टर जाफर अली, साबका प्रिंसिपल कॉलेज प्रिंसिपल शाज़ शरीफ गोंदल के अलावा तलबा व तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुकर्रिरीन का कहना था कि आज ज़ेवर तलीम से रास्ता होना तलबात और आने वाली नस्ल के साथ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार हैं। डिवीजनल डायरेक्टर कॉलेज फैसलाबाद डॉक्टर बुशरा परवीन का कहना था कि कॉलेज में तालबात की तलीमी सरगर्मी के तसलसल के लिए हमने हमेशा मावनत की और साइंस, कंप्यूटर और दीगर साइंसी व फनी अलूम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाते रहेंगे ताकि तलीमी मैदान में तालबात को किसी खलल का सामना ना करना पड़े। 70 चेयर्स मंगवा ली और हमारा फर्नीचर भी शोरकोट सिटी में पड़ा हुआ था बॉयज कॉलेज में, वहाँ से 70 चेयर्स मंगवा ली। जब एडमिशन ज्यादा हो गया तो फिर दोबारा मंगवाया और बच्चों ने हेल्प की, वहाँ से चेयर्स ला के इधर अपने लोग आज तहसीन पेश करता हूँ बिलखसूस प्रिंसिपल साहबा। और इस मंजिल के पीछे आपने मैडम ने बहुत खूबसूरत बातें की कि आपके रात जगे हैं, आपकी दिन की मेहनत है, आपने मौसम की सख्ती को झेला, आप अपने घरों से 4 साल के लिए इस इदारे के अंदर रेगुलर आए, आपने यहाँ पर इम्तिहानात दिए, आपने अपनी असेसमेंट देखी और आपने यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखा। प्रिंसिपल बुशरा परवीन ने कहा कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली तालबात को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा ताकि इल्मी मैदान में दुनिया के साथ आगे बढ़ा जा सके। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शाज़ी गोंदल ने कामयाब डिग्री होल्डर तालबात को मुबारकबाद पेश की और शुरका का शुक्रिया अदा किया। कैमरा मंजूर हसन सयाल, NTN न्यूज़, शोरकोट। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। चिन्योट में मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो सेंटर कायम कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर विनस से। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट DH हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर पोलियो मुहिम का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है। जबकि जो है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और बच्चों को कतरे पिलाकर जो है यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे और वालिदैन को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पोलियो मुहिम जो है ये 3 दिन के लिए यहाँ पर चिन्योट के अंदर की जा रही है। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने किया है और CO साहब की तरफ से और जो हमारे रिस्पेक्टेड जितने भी मेडिकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ टीमें और मुख्तलिफ़ जगह पे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी तरह हमारे DHQ में भी यहाँ पे पॉइंट कायम किया गया है बच्चों को कतरे पिलाने के लिए। और वालिदैन से हम यही गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और अपने बच्चों को कतरे पिलाएँ ताकि वो पोलियो जैसी मोज़ी अमराज से बच सकें बच्चे उनके। जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर साहब का कहना है कि 2 बूंद कतरे जो है पोलियो के जो है पूरी उम्र भर ज़िंदगी जो है महजूरी से जो है बच्चों को बचाया जा सकता है। जबकि बच्चों को चाहिए कि वो कतरे पिलाए जाएं और वालिदैन को चाहिए कि तमाम तर जो है सेंटर जहाँ कैंप किए गए वहाँ जाकर अपने बच्चों को जो है लाजमी पोलियो कतरे पिलाएं और जो है उम्र भर की मजदूरी से बच्चों को बचाया जा सके। जी, पंजाब के दीगर अजला की तरह पाकपतन और इसके गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध ने मामूलाते ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ सैफ खान से। जी सैफ, बताइएगा। पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी आज शदीद धुंध का राज है। पाकपतन शहर और उसके देहाती इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है, जिस वजह से सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा हो गया है। ट्रैफिक की रवानी काफी सुस्त है, जिस वजह से लोगों को सफर करने में काफी मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान का कहना है
کہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے. اگر سفر کرنا ضروری ہو تو احتیاطی تدابیر استعمال کریں, فوگ لائٹ اور انڈیکیٹر کا استعمال کریں تاکہ کسی بھی رونما حادثے سے بچا جا سکے. جی بورے والا میں واپڈا کا میپکو اہلکاروں اور رینجرز کے جوانوں کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن. بجلی کی مین سپلائی سے ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے 3 بجلی چور رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے. بجلی چوروں نے میٹرز میں ٹمپرنگ بھی کی ہوئی تھی. ڈائریکٹ لگائے گئے کنڈے، میٹرز اور بجلی کی تاریں ہٹا دی گئی. مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز محمد شہباز قریشی سے. بجلی چوروں کے خلاف میپکو بورے والا کا گرینڈ آپریشن جاری. ایکسین واپڈا کی نگرانی میں میپکو عظیم آباد سب ڈویژن کی ٹیم نے رینجر کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کی. مین سپلائی سے ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے 3 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. ملزمان میٹرز میں ٹیمپرنگ کرتے ہوئے بھی پائے گئے. کارروائی کے دوران ڈائریکٹ لگائے گئے کنڈے، غیر قانونی میٹرز اور بجلی کی تاریں ہٹا دی گئیں، جبکہ 11 سنگل فیز اور 60 میٹر PVC تار قبضہ میں لے لی گئی. بجلی چوروں کے خلاف تھانہ گگو منڈی میں مقدمات درج. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایکسین واپڈا نے کہا کہ بجلی چور معاشرہ کا ناسور ہیں، جن کے خلاف بلا تعطل قانونی کارروائیاں جاری رہیں گی اور بجلی چوری میں ملوث افراد پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد شہباز قریشی، NTN نیوز بورے والا. سندھ کی 5000 سالہ قدیمی تاریخ اور تہذیب کو ہر سال نئی زندگی دینے کے لیے سندھی میڈیا کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں سندھی ثقافتی دن یکجہتی کا دن کے نام سے منایا جاتا ہے. اسی دن کے حوالے سے رتو ڈیرو کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نومبر 2 کو ثقافتی رنگوں سے آراستہ کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات خان محمد کی اس رپورٹ میں. سندھ کی 5000 سالہ قدیمی تاریخ اور تہذیب کو ہر سال نیا رنگ اور نئی زندگی دینے کے لیے سندھی میڈیا کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں سندھی ثقافتی دن یکجہتی کا دن کے نام سے منایا جاتا ہے. اسی دن کے حوالے سے پوری سندھ کی طرح رتو ڈیرو کے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نمبر 2 میں بھی طلباء، طالبات اور اساتذہ کی جانب سے ثقافتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، طالبات، اساتذہ کے ساتھ والدین اور شہریوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر اسکول کو ثقافتی ریلی اور اجرک سے سجایا گیا، جس سے پورا ماحول ثقافتی رنگوں میں ڈھل گیا. تقریب کے دوران اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہمارے رتو ڈیرو 2 اسکول میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو ویسا ہی پروگرام بلکہ ہر سال سے بڑا پروگرام بڑے جذبے کے ساتھ بچوں کی خوشی جو ہے وہ قابل دید ہے. مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سندھی ہیں اور ایک قدیم تہذیب کے وارث ہیں اور اپنی عظیم ثقافت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے ثقافتی دن ہی واحد ذریعہ ہے. اسی لیے ہم اس دن کو جوش اور جذبے سے مناتے ہیں. دوسری جانب بچے ثقافتی دن کے حوالے سے پرجوش اور پرعزم نظر آئے. پروگرام کے دوران بچوں نے ثقافتی تقاریر کی، قومی گیتوں پر رقص کیا اور سندھ کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی. مزید طالبہ کا کہنا تھا کہ جو ثقافت کی ڈریس ہے، اجرک ٹوپی پہن کے ہم اپنا یہ منا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. اور یہاں پر تو بہت ساری اسپیچ، بہت ساری ٹیبلیں وغیرہ ہوئے ہیں، جن میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کلچر ڈے کا اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور ہمارا جو ہے نا سندھ وہ سب سے اعلیٰ ہے. اب آپ کو بتائیں گے لیاقت پور میں مدد کے لیے 15 پر کال کرنا شہری کے لیے جرم بن گیا. تھانہ چنی گوٹ پولیس کے ASI محمد عابد قاضی نے 15 پر کال کر کے مدد مانگنے والے شہری پر 30 لیٹر شراب کا مقدمہ درج کر دیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جمشید سمد سے. جی جمشید، آگاہ کیجیے گا. جائز استعمال معمول بنا لیا ہے. موضوع پنو جھلن کے رہائشی محمد یعقوب کا مدد کے لیے 15 پر کال کرنا جرم بن گیا. تھانہ چنی گوٹ میں پولیس کے ASI محمد عابد قاضی نے 15 پر کال کر کے مدد مانگنے والے شہری پر 30 لیٹر شراب کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا اور تمام ثبوت 15 پر کی گئی کال اور ASI کی عابد کی سائل کو کی گئی کال کی ریکارڈنگ NTN نیوز نے حاصل کر لیا، جس سے واضح ہو چکا ہے کہ ASI عابد نے جھوٹا مقدمہ درج کیا. متاثرہ شہری یعقوب کے مطابق 10 تاریخ کو ٹیوب ویل چلانے گیا تو اس کے بھائی امین نے گالم گلوچ کیا اور لڑائی شروع کر دی، جس پر یعقوب نے مدد مانگی. چنی گوٹ میں پولیس موقع پر پہنچی. ASI محمد عابد قاضی دونوں بھائیوں کو تھانے لے گیا. رشوت لے کر ملزم امین کو چھوڑ دیا، جبکہ مدعی یعقوب کو ڈرایا دھمکایا اور 15 پر کال کیوں کی. 15 پر کال کرنے کی رنجش پر تھانے دار نے 30 لیٹر شراب کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے شہری کو حوالات میں بند کر دیا. متاثرہ یعقوب 3 دن جیل میں بند رہنے کے بعد عدالت سے ضمانت پر رہا ہوا اور
याकूब ने डीपी और बहावलपुर और वजीर आला से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की और साथ शफाफ इंक्वायरी करके रिश्वतखोर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसर आबिद काजी को नौकरी से बर्खास्त करने का मुतालबा कर दिया। जी समद हमें आगाह कर रहे थे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।